Hello students, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class after the exams. So today students, we are going to start with the new chapter which I have already briefed you up in previous live class. Right students? We have started chapter number 6, that is the tree spirit, from your Communicate in English textbook. So we are going to move ahead with the same chapter, as I have already told you the summary and I also gave you some homework related to it, right? As you see over here the picture, you know that trees helps us in many ways. If you see the pictures given over here, we can make it out कि trees कौन कौन सी चीज़ों में हमको help करता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो the papers, right? The tree is used to make papers. Then if you see the second image over here students, here we can see that a person is lying in the shade. The person is sitting under the shade, right? That means the tree provides us with the shade also, right, from the heat of the summer and rain, right? Here you can see the image of a hut covered with, if you see the roof students, right, it is covered with the grass which is also used, is also obtained from tree, right? Then we can see the furniture which is made out of the wood of the tree. Then the house over here, that is also made out of the logs, right? Then there are some medicinal and medicinal plants which provides us with medicines and herbs, right? And over here you can see the birds having their nest on the tree, so it's a home to the birds. And if you see this girl having food on the serving plate, and this serving plate is just a big leaf, right? So there are different uses of the tree, and I have also given you the homework to write down any 5 uses of trees, right? So I hope that you have completed it, and we have started this reading. So today we are going to move ahead with the story. Okay students, here this is a story about it's a story about one king, okay, who is living in a faraway land, and he wants to build a strong palace, right, having a column of a tree, and that tree has to be very strong. So he asked his men to go out and look for it in the forest. Well, they don't find it in the forest, but in the city, when they were moving around, they found it in the forest, means it was quite nearby the palace but not too near, so they were thinking how to bring it down, right? It was quite difficult for them, and the tree which they found was that of a sal tree, and it was quite old, okay, it was quite old, and it was a tree which had a wise spirit living in it, and the villagers nearby used to worship that tree, right? So the villagers were not ready to allow the king to cut that tree because it had a wise spirit also. So they didn't want the king to cut the tree, but the king was very firm about his decision, and he decided that he is not going to listen to the villagers. So the spirit who was living in the tree, she decided to go and convince the king. And after having a talk with them, what was the talk? We are going to look into that afterwards. But yes, the wise spirit said something to the king which made the king realize about his mistakes, and he changed his decision and he decided to give up his decision of cutting that tree. Okay students, so we are going to see the story, and we will be starting from the first point which is there on the page number 67. A tale that has been told over many years ago is called a folk tale. So students, folk tale मतलब क्या होता है? Very famous stories
विच हैव बीन सेड अगेन एंड अगेन ओवर द ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों से वो स्टोरी सुनने में आती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है ना। वैसी वाली स्टोरीज़ को हम फॉक टेल कहते हैं। और वैसी ही एक ब्यूटीफुल फॉक टेल है अबाउट द किंग एंड ट्री स्पिरिट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट। स्पिरिट मीन्स a fairy or an angel. You can see the meaning over here. It's an imaginary creature such as fairy or elf. रियलिटी में नहीं होता है बच्चों, सिर्फ स्टोरी है, इमेजिनेशन है, ठीक है। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग इज़ रियल, देर आर समथिंग विच आर फिक्शन ऑल्सो। तो ये वाली स्टोरी वैसी ही है, ठीक है। देर वॉज वंस अ किंग इन अ फार अवे लैंड, ही हैड ए ग्रैंड आइडिया। एक बार एक किंग रहता था फार अवे लैंड, फार अवे मतलब काफ़ी दूर, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा आइडिया था, ग्रैंड मीन्स वेरी बिग आइडिया। एंड व्हाट वाज हिज आइडिया? आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल पैलेस एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ सिंगल कॉलम इन द सेंटर। उसे क्या चाहिए था? एक ब्यूटिफुल सा पैलेस चाहिए उसे, और वो किस तरह से सपोर्ट हुआ होना चाहिए? एक सिंगल कॉलम से, ठीक है। दिस इज़ कॉलम, आप लोगों को मालूम होगा, आप कंप्यूटर पढ़ते हो, ये जो होता है वो कॉलम होता है और ये रो होता है ना। तो वैसे ही उसका जो पैलेस है उसके बिल्कुल बीच में ये ट्री का जो पूरा लॉग होता है, ट्रंक होता है, राइट, उसको सपोर्ट करके पूरा पैलेस बनाना था उसे, और उसी सिंगल कॉलम को बीच में रखना था। मतलब ऐसा फील हो कि ट्री के आसपास पैलेस बनाया हुआ है, ट्री था पहले से और वहीं पे पूरा पैलेस बनाया हुआ है, राइट। सो ही वांटेड अ सिंगल कॉलम ऑफ अ ट्री। अभी ये सिंगल कॉलम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इट हैड टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना। अब पैलेस बनाना है उसके ऊपर, मतलब उसके सपोर्ट से, तो फिर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ही पैलेस की बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। सो किंग डिसाइडेड कि मुझे एक घर बनाना है, सॉरी पैलेस बनाना है, और उसके लिए उसे वो बीच में जो कॉलम बनेगा वो ट्री का होना चाहिए, ठीक है। द किंग कॉल्ड हिज चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपने जो मिनिस्टर होते हैं उसके, चीफ मिनिस्टर मतलब उनके जो एडवाइजरी होते हैं, मतलब जो एडवाइस देने के लिए होते हैं, वो उनको बुलाया। उनको कहा कि सेंड मैन टू अवर फॉरेस्ट, टेल दैम टू कट डाउन द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री दे कैन फाइंड एंड ब्रिंग इट टू मी। क्या ऑर्डर दिया किंग ने? किंग ने कहा कि गो एंड आस्क अ मैन, मतलब उनके जो सोल्जर्स होंगे या जो उनकी देखरेख में रहते हैं, राइट, जो सर्वेंट्स, नॉट सर्वेंट्स, आई एम सॉरी, नॉट सर्वेंट्स, द सोल्जर्स और द पीपल हु वर्क फॉर हिम, राइट, उनको बोला कि आप, चीफ मिनिस्टर को बोला कि आप उनको भेजो फॉरेस्ट में, और उनको बोलो कि सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ट्री है वो काट कर लेकर आए, है ना। आस्क देम टू गो एंड फाइंड सच स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री एंड कट इट डाउन फॉर मी, और उस ट्री को कट कर दो। किसके लिए? किंग के लिए। किंग का ये जो आइडिया है, राइट, टू मेक अ पैलेस विद द सपोर्ट ऑफ ट्री, तो वो जो उसका आइडिया है उसको फुलफिल करने के लिए उसने क्या कहा कि एक ट्री को काट दो जो काफ़ी पुराना होगा तो ही स्ट्रॉन्ग भी होगा, और जो बहुत बड़ा है वैसे वाले ट्री को काट दो जाके, राइट। द मिनिस्टर सेंट आउट 30 फॉरेस्टर्स। नाउ फॉरेस्टर्स का मतलब यहाँ दिया हुआ है बेटा, फॉरेस्टर्स मीन्स पीपल हु वर्क इन फॉरेस्ट एंड टेक केयर ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, ओके, वो होता है फॉरेस्टर्स। द मिनिस्टर सेंट आउट 30 फॉरेस्टर्स। आफ्टर अ फ्यू डेज दे रिटर्न। कुछ दिनों बाद वो वापस आए, एंड आफ्टर सम डेज दीज 30 फॉरेस्टर्स हु वेंट आउट इन द सर्च ऑफ दैट ट्री, दे केम बैक। There are many gigantic trees in the forest. We cannot carry them and bring them to the city, right? So उन्होंने किंग के पास जाके क्या बोला कि बड़े बड़े ट्रीज तो है, gigantic means huge, है ना। gigantic का मतलब होता है huge, huge means quite big, है ना। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज है वैसे तो फॉरेस्ट में, but the thing is we cannot carry them and bring them to the city. उसको हम कट करके लेकर नहीं आ सकते हैं, वी कांट ब्रिंग इट ओवर हियर इन द सिटी। द फॉरेस्टर्स फाउंड अ स्प्लेंडिड सॉल ट्री, सॉरी, वेरी वेल
find a tree in the city parks and bring it to me in 7 days. So किंग ने क्या रिप्लाई दिया, ठीक है अगर फॉरेस्ट में बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं तो आप उसको मत काटो, उसको लेकर आने में मुश्किल हो रही है, तो आप क्या करोगे, सिटी में ही, सिटी के जो पार्क्स होते हैं राइट, सिटी पार्क्स जो होते हैं उसमें जाके ढूंढो अगर कोई ट्री ऐसा ही है स्ट्रॉन्ग, है ना, तो वो लेके आ जाओ. ब्रिंग इट टू मी इन 7 days. नाउ दे वेंट आउट राइट टू लुक ओवर देयर. वो अपना सर्च चालू किया उन्होंने सिटी के अंदर. पहले फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ पे ट्रीज़ तो काफ़ी सारे हैं बड़े बड़े, लेकिन उसको कट करके लेके आना मुश्किल है. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप सिटी में ही एक ट्री फाइंड आउट करो जो कट करके आप ला सकते हो. तो सिटी पार्क में जब गए वो लोग तो उनको एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा ट्री मिला. दिस फॉरेस्टर्स फाउंड अ स्प्लेंडिड साल ट्री दैट ग्रीव नियर द पैलेस. दे डिसाइडेड टू कट इट डाउन. फॉरेस्टर्स को एक बहुत ही अच्छा साल ट्री देखने को मिला, ठीक है, जो पैलेस के काफ़ी पास में था. इट वॉज क्वाइट नियर टू द पैलेस, मतलब जो अभी पैलेस जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पर. सो व्हाट डिड दे डिसाइडेड, दैट दे डिसाइडेड टू कट इट डाउन. तो वहाँ के जो लोग थे आसपास के राइट, उन्होंने कहा, ओ प्लीज़ डू नॉट हार्म दिस स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल ट्री. इट इज़ द होम ऑफ एंशियंट एंड वाइज स्पिरिट who has protected us all for generations. So वहाँ के आसपास के जो लोग थे वो आके उनको बोले कि प्लीज़ डू नॉट कट द ट्री, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल वन, and in fact there is one wise spirit, that means a wise angel or a wise soul lives over there right in the tree, and that wise spirit has protected us for all for generations. generations means सालों से ये हमें प्रोटेक्ट करता आया है, क्योंकि ट्रीज़ की लाइफ होती है, ठीक है, ट्रीज़ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है. तो वो क्या कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से हमें प्रोटेक्ट करता आया है और हम उसको वर्शिप करते हैं, है ना. एंशियंट एंड वाइज, एंशियंट का मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड, क्वाइट ओल्ड, है ना. एंड वाइज, वाइज मीन्स अ पर्सन हु हैज़ गुड इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, और अच्छा, है ना, नोबल एंड जेनरस. तो वैसी ही एक स्पिरिट है और वो उस ट्री के ऊपर रहती है, साल ट्री के ऊपर, और वो इन विलेजर्स को प्रोटेक्ट करती है, ये उनका मानना है, और वो उस स्पिरिट को वर्शिप भी करते हैं. इट्स अ किंग ऑर्डर. तो क्या कहा ये फॉरेस्टर्स ने, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो किंग का ऑर्डर है, सो वी आर गोइंग टू कट इट इन 7 days, राइट. द फॉरेस्टर्स स्पोक रिस्पेक्टफुली टू द ट्री स्पिरिट. जो फॉरेस्टर्स मतलब उसमें से ही कुछ थे, जो विलेजर्स थे वो तो ठीक है, उसके साथ साथ जो लोग देख रहे थे राइट, सबसे पहले कहाँ गए थे वो लोग, फॉरेस्ट में देखने गए राइट, ट्रीज़ को. तो वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन कट करके लेके आने जैसी कंडीशन में नहीं थे, तो सिटी पार्क में ढूंढने गए. तो वहाँ पर उन्होंने बोला, बाकी सब तो थे ही, लेकिन साथ में ये जो फॉरेस्टर्स के साथ जो मिनिस्टर होंगे वो सब भी गए होंगे, है ना. तो वो लोगों ने, जो फॉरेस्टर्स थे उसमें से कुछ लोगों ने कहा मिनिस्टर को कि देखो ये तो काफ़ी पुराना है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा, बिकॉज दे वर ऑल्सो डूइंग समथिंग विच द किंग हैड टोल्ड दैम, है ना. सो उनको साल ट्री मिल तो गया फॉरेस्टर्स को कट करने के लिए, लेकिन बाकी सारे लोगों की तरह ये लोग भी उस ट्री को वर्शिप करते हैं बिकॉज ऑफ दैट वाइज स्पिरिट हु इज़ लिविंग ओवर देयर सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, है ना, इसीलिए. तो अभी ये जो फॉरेस्टर्स है उन्होंने ट्री स्पिरिट से काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात की. रिस्पेक्टफुली मीन्स विथ फुल डिग्निटी दे ट्राइड टू स्पीक. You must leave the tree within 7 days. The king needs the wood from this tree to build his new palace. So फॉरेस्टर्स जो थे उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात की, है ना. ये जो स्पिरिट थी उसके साथ बात की कि भाई तुम ये ट्री छोड़ के चले जाओ, गो एंड फाइंड सम अनदर ट्री एंड लिव ओवर देयर, बिकॉज इट्स अ किंग ऑर्डर. सो ये ट्री को तो कट किया ही जाएगा. ही नीड्स द वुड फ्रॉम दिस ट्री to build his new palace, so you need to leave this place, right. This must not be allowed to happen. So ये जो वाइज स्पिरिट थी उसने क्या कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज़ होने नहीं देनी चाहिए. You should not allow this thing to happen. The tree spirit became sad. She was quite upset, and obviously she is going to be upset.
अगर आपके घर को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आपको कैसा फील होगा? वैसा ही फील हो रहा है ये स्पिरिट को, राइट? सो व्हाट डिड शी डिसाइडेड कि आई विल विजिट द किंग एंड ट्राई टू चेंज हिज माइंड। उसने क्या कहा कि मैं किंग को विजिट करने जाऊंगी एंड आई विल ट्राई टू टॉक टू हिम, आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम एंड चेंज हिज माइंड। चेंज हिज माइंड मीन्स चेंज हिज डिसीजन, उसका जो डिसीजन है वो चेंज करने का ट्राई करूँगी मैं, राइट? दैट्स वॉट द ट्री स्पिरिट डिसाइडेड टू डू। नाउ दैट नाइट द ट्री स्पिरिट अपीयर्ड बिफोर द किंग इन हिज ड्रीम्स। और ये जो ट्री स्पिरिट है उसने क्या किया? शी इज़ अपीयर्ड बिफोर द किंग इन हिज ड्रीम्स, उसकी ड्रीम्स में जाके उससे बात की, ठीक है? अपीयर्ड मतलब उसके ड्रीम्स में वो पहुंच गई। शी केम इन फ्रंट ऑफ द किंग इन हिज ड्रीम्स। आई एम द स्पिरिट ऑफ द साल ट्री, ओ किंग, आई वॉज एज फ्री एज ब्रीज, बट टुडे आई लर्नड ऑफ योर प्लान टू कट द ट्री डाउन। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। सो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया सबसे पहले। व्हाट डिड शी से कि आई एम द स्पिरिट ऑफ साल ट्री, मतलब साल ट्री के ऊपर मैं रहती हूँ। आई एम दैट वाइज स्पिरिट हु इज़ लिविंग ओवर देयर, बट एंड आई वॉज फ्री एज ब्रीज, मतलब अभी तक मैं बहुत शांति से रही हूँ, राइट? फ्री एज ब्रीज विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, राइट? नथिंग सच वॉज देयर इन हर लाइफ एंड सडनली शी केम टू नो टुडे दैट यू आर प्लानिंग टू कट द ट्री डाउन। दैट मीन्स उसने किंग को बोला कि आज मुझे सडनली पता चला कि आप यही ट्री को कट करने का प्लान कर रहे हो, राइट? सो आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। तो उसने किंग से क्या कहा कि मैं आपसे बेग कर रही हूँ, आई एम प्लीडिंग यू टू चेंज योर माइंड, मतलब चेंज योर डिसीजन। द किंग वॉज नॉट मूव्ड, किंग को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। नॉट मूव्ड मीन्स उसका जो डिसीजन था वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इट वॉज वेरी फर्म। नो आई कैन नॉट, योर्स इज़ द ओनली ट्री स्ट्रांग इनफ टू सपोर्ट द पैलेस। सो किंग ने उसको क्या कहा कि सी, तुम जिस ट्री के ऊपर रह रहे हो वही ट्री काफ़ी स्ट्रांग है जो मेरे पैलेस को अच्छे से सपोर्ट करेगा। सो प्लीज़ डू नॉट आस्क मी टू डू दिस, ओके? योर्स इज़ द ओनली ट्री, सो आई कांट डू एनी थिंग अबाउट इट। सो वाइस स्पिरिट जो है उसने कहा, ओ किंग, फॉर 1000 years पीपल हैव वर्शिप्ड मी, बर्ड्स हैव दियर नेस्ट ऑन माई ब्रांचेस एंड पीपल रेस्ट अंडर माई शेड। सो जो वाइस स्पिरिट थी, जो एंजल थी, उसने किंग को समझाने का ट्राई किया, कन्विंस करने का ट्राई किया। क्या कहा उसने कि सालों से, फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल हैव वर्शिप्ड मी, मतलब जो लोग हैं वो मुझे वर्शिप करते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं, राइट, वो अपने नेस्ट बनाते हैं, मतलब उनका ये घर है ऑन माई ब्रांचेस, एंड पीपल रेस्ट अंडर माई शेड, और लोग क्या करते हैं उसके शेड में रेस्ट करते हैं, राइट? सो द किंग हर्ड द स्पिरिट बट इंसिस्टेड। किंग ने उसकी बात तो सुनी, है ना, लेकिन इंसिस्टेड मतलब सी आई कांट डू एनी थिंग, वैसे वाला इंसिस्टेड था, ठीक है? मतलब ही इंसिस्टेड, मतलब ही जस्ट ट्राई टू टेल द एंजल या स्पिरिट कि देखो तुम जो कह रहे हो वो सही है, बट आई कैन नॉट स्पेयर यू, दैट मे बी ट्रू बट आई कैन नॉट स्पेयर यू, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूँ। स्पेयर मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना? Then mighty king, please cut me in 3 parts. First, cut away the green part. Next, cut my middle with its 100 strong arms and hands. And last of all, cut my trunks. So, जो किंग था, माइटी किंग, उसको माइटी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके सामने किसी की चलती ही नहीं है ना? तो उसने कहा कि ओ माइटी किंग मीन्स वन हु हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, है ना? तो उसने कहा कि ओ माइटी किंग, देन कट मी इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में कट करने के लिए कहा? 3 पार्ट्स में कट करने के लिए। पहला वाला ग्रीन पार्ट, मतलब सारे लीव्स और जो ब्रांचेस होते हैं थोड़े थोड़े, है ना, सबसे ऊपर वाले, वो वाला पोर्शन पहले कट कर दो। देन कट द मिडल विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मतलब ट्री का जो ट्रंक होता है, राइट, ये जो ट्रंक है, मान लो ये ट्री का ट्रंक है, और फिर उधर से जो ब्रांचेस निकलती है ना, बीच वाली, ये सारी, वो काफ़ी सारे, उसको आर्म्स कहा गया है। जो ब्रांचेस है ना स्ट्रॉन्ग वाली, जो ट्रंक से सीधा कनेक्टेड है, ठीक है, दोज ब्रांचेस विच आर कनेक्टेड विद द ट्रंक,
दोज आर कंसिडर्ड टू बी आर्म्स, ठीक है, उसको आर्म्स कहा गया है। तो उसने क्या कहा, सबसे पहले ऊपर का टॉप ऑफ द ट्री जो ज़्यादातर ग्रीन होता है उसको कट करना है, देन द स्ट्रॉन्ग आर्म्स, राइट, एंड देन लास्ट ऑफ ऑल कट माई ट्रंक, सबसे लास्ट में ट्रंक कट करना, ठीक है। ये बात सुन के किंग को समझ में नहीं आया कि वाई डू यू वॉन्ट टू सफ़र 3 टाइम्स, है ना। एक ही ब्लो से अगर नीचे से कट करते हैं ट्रंक से तो क्या होगा, पूरा ट्री नीचे गिर जाएगा, है ना। तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू सेइंग दैट यू वॉन्ट टू सफ़र 3 टाइम्स, राइट। किंग वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एट द स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, सरप्राइज्ड दैट मीन्स ही वॉज शॉक्ड कि ऐसा रिक्वेस्ट कौन करता है, स्ट्रेंज मतलब समथिंग क्वाइट अनयूजुअल, है ना। सो ही आस्क्ड द स्पिरिट, वाई डू यू वॉन्ट टू सफ़र 3 टाइम्स, तुमको क्यों 3 बार सफ़र करना है। सो द वाइज स्पिरिट सेड, येस आई डू। तो उसने क्या कहा कि हाँ, आई एम ओके, आई कैन सफ़र 3 टाइम्स। उसने रीज़न दिया उसको कि सी डजन्स ऑफ यंग साल ट्रीज हैव स्प्रंग अप अराउंड मी, इफ़ यू कट मी विथ वन स्ट्रोक दे ऑल विल बी क्रश्ड अंडर माई वेट, but if I fall in 3 pieces, some of the little ones may still thrive. Do you grant my wish? Sprung around me मतलब grown around me। अभी जैसे मान लो ये ट्री है आपका, ठीक है, ये वाला डायरेक्टली अगर यहाँ से कट किया जाएगा तो ये सारा एकदम फोर्स के साथ नीचे गिर जाएगा, और सो ब्रांचेस है ना, लीव्स है छोटी छोटी जो आगे जाके बड़े ट्रीज़ बनेंगे, है ना। तो वो जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे, राइट। सो उसने क्या कहा, स्प्रंग अराउंड मी मतलब उसके आसपास के जो भी ट्रीज़ होंगे छोटे छोटे, राइट। अभी जैसे मान लो कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्री ग्रो हुआ है, अभी इसके अंदर भी काफ़ी सारे ब्रांचेस होंगे जिसके ऊपर नए नए क्या कहते हैं, लीव्स आए होंगे, बड्स होंगे, है ना, जो नीचे गिरेंगे तो वो भी दूसरे ट्रीज़ बनेंगे। या फिर मान लो यहाँ आसपास में ट्रीज़ ग्रो हो रहे हैं, अभी स्टार्ट ही हुए हैं, है ना, बहुत सारे हैं आसपास में। तो अगर इस बड़े से स्ट्रॉन्ग ट्री को कोई सडनली नीचे गिराएगा तो उसके नीचे आसपास के जो लोग हैं, मतलब आसपास के जो ट्रीज़ हैं वो भी गिर के मर जाएंगे, है ना। तो उसने क्या कहा कि ऐसा मत करना, यू कट मी इनटू 3 पार्ट्स, राइट, ताकि पूरा का पूरा फोर्स एक साथ नीचे नहीं जाएगा। तो कुछ जो है, कुछ जो यंग वंस है, मतलब कुछ ट्रीज़ जो है छोटे वाले, वो क्या होंगे, वो बच जाएंगे, एंड दे में स्टिल थ्राइव, दैट मीन्स दे में ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, है ना। तो जो आसपास वाले जो ट्रीज़ है छोटे छोटे, वो जो ट्रीज़ है उसका लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगा, इट वोंट एंड और इट वोंट डाई, इट वुड ट्राई टू स्टे अलाइव, है ना, वो जीने का ट्राई करेंगे, ग्रो करने का ट्राई करेंगे, ओनली इफ़ आई एम कट इन टू 3 पार्ट्स। आई नो आई हैव टू सफ़र अ लॉट, मतलब दिस इज स्पिरिट इज सेइंग कि मुझे सफ़र करना पड़ेगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट द थिंग इज़ कि आई एम ओके विथ इट टोटली, राइट। द किंग थॉट अबाउट द स्पिरिट्स वर्ड्स ऑल नाइट। किंग वॉज थिंकिंग अबाउट इट, सी नाउ एवरीथिंग वॉज इन ड्रीम, ओके, रियल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पूरी रात उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में वो ड्रीम घूम रहा था और वो पूरा टाइम सोच रहा था, राइट, कि ऐसा कौन करता है, हु डज दिस, मतलब हु सेक्रीफाइसेस वन सेल्फ, राइट, हु सेक्रीफाइसेस वन सेल्फ फॉर अदर्स हैप्पीनेस, या फिर दूसरे के बारे में सोच के कौन अपने आप को ख़त्म कर देता है ना। सो दैट इज़ समथिंग विच द किंग वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल नाइट। The tree spirit is so kind and wise. What a great sacrifice it is prepared to make for love, right? That is a love for that tree, for the young ones who are growing around her, right? उन सब के बारे में सोच के the tree spirit ने decide किया कि I am totally fine to sacrifice myself, but you need to grant me this wish so that जो छोटे छोटे ट्रीज़ हैं आसपास में वो भी मर ना जाए मेरी वजह से, है ना, क्योंकि इतना बड़ा ट्री है तो वज़न उसका वेट भी इतना ही होगा, है ना। सो अगर इतना सारा वेट फोर्सफुली सडनली गिरेगा किसी चीज़ के ऊपर तो उसके नीचे जो चीज़ होगी वो ऑब्वियसली डेड हो जाएगी, है ना, इट वुड डाई, राइट। सो ये सारी चीज़ें सोचने के बाद किंग ने क्या सोचा, द नेक्स्ट मॉर्निंग किंग कॉल्ड द मिनिस्टर एंड हिज फॉरेस्टर्स। किंग ने अपना माइंड चेंज कर लिया था,
ठीक है। तो उसने अपने मिनिस्टर को और फॉरेस्टर्स को बुलाया और कहा आई हैव चेंज्ड माई माइंड, दैट मीन्स आई हैव चेंज्ड माई डिसीशन। द कॉलम विल बी बिल्ट ऑफ स्टोन्स नॉट वुड। ठीक है, ये जो कॉलम हमने पहले ट्री से बनाने का सोचा था वो हम ट्री से नहीं बनाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ वुड, वी आर गोइंग टू यूज़ स्टोन। दिस इज़ बिकॉज अ वेरी नोबल स्पिरिट लिव्स इन द साल ट्री, है ना। तो उसने सोचा कि नहीं, अब हम ये नहीं करने वाले हैं। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, आई डोंट वॉन्ट टू कट दैट ट्री बिकॉज अ वेरी वाइज स्पिरिट लिव्स ओवर दैट। नोबल मीन्स काइंड एंड जेनरस। ओके, नोबल का मतलब क्या होता है? काइंड एंड जेनरस। ओके, सो द फॉरेस्टर्स एंड द मिनिस्टर बोथ वर वेरी हैप्पी, है ना। वैसे तो किंग का ऑर्डर था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी ऐसा था कि ये ट्री कट नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि विलेजर्स तो थे ही, लेकिन साथ में कुछ फॉरेस्टर्स भी ऐसे थे जो उस ट्री को वर्शिप करते थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये ट्री कट हो। तो जब किंग ने अपना डिसीजन बदल दिया तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी, राइट। एंड दिस वॉज द रियलाइजेशन मेड बाई, or you can say the realization happened because of the spirit, है ना। भले ही चेंज आया किंग के अंदर, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ दैट वाइज स्पिरिट विच लिव्ड इन द ट्री। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। आई विल सेंड यू द हार्ड वर्ड्स, आई विल अंडरलाइन द वर्ड्स एंड सेंड इट इन द होमवर्क ग्रुप। यू हैव टू राइट डाउन दोज वर्ड्स 2 times, ओके। ठीक है, और अगर कोई डाउट है देन लेट मी नो, वी विल डू इट अगेन इन द क्लास, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।